یہ ساری تفصیل ہے۔ میرے لیے اب بھی اگر کوئی حکم ہے تو دوستانہ طور پر بتا دیجیے۔ ہمیں تھوڑا رنج ہو رہا ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے اچھے خیالات کے ساتھ کیا ہے۔ تمہیں اس سے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے علیجا تو واقعی ہم شرمندہ ہیں۔ تمہارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر مشکل سے محفوظ رکھے۔ ویسے یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس آتے جاتے تو رہو گے نا؟ علیجا کا کوئی جواب نہ ملا تو بابا ادریس علی نے 2-3 بار اسے آوازیں دیں اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، سب کچھ ذات باری تعالیٰ کے حکم پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی بہتر کرے اور علیجا تمہارے حق میں بھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ ڈاکٹر حارث کے مکان پر پہنچ گئے۔ چودھری شاہ نواز کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ عرشیہ کے حصول سے تقریباً مایوس ہو چکا تھا، لیکن تقدیر نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ادھر ڈاکٹر حارث عرشیہ کو اشتہار دکھا کر اس بارے میں مختصراً بتا چکے تھے۔ عرشیہ ذہنی ہجوم کا شکار تھی۔ اس نے ڈاکٹر حارث سے کہا، اور اگر وہ لوگ مجھے یاد نہ آئے تو ہم ایک آزمائشی عرصہ رکھیں گے جس میں انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ تمہاری یادداشت واپس لانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو تمہیں واپس یہاں بلا لیا جائے گا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے انکل۔ بیٹے، تم مجھ سے میرے دل کا حال پوچھو۔ میں نے ایک بار پھر اپنا گھر آباد کر لیا، لیکن میں کسی کی امانت پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قانوناً جرم بھی ہے اور اخلاقی بھی۔ ہاشم علی کے بیل بجانے پر ڈاکٹر حارث کے گھر موجود شہباز نے دروازہ کھولا تھا۔ ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد عرشیہ ڈاکٹر حارث کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ چودھری شاہ نواز اسے دیکھ کر بے اختیار ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا تو ہاشم علی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ آپ براہ کرم صبر سے کام لیں، یہ ضروری ہے۔ عرشیہ، تم خیریت سے تو ہو نا عرشیہ؟ عرشیہ، مجھے پہچان لیا نا تم نے؟ میری درخواست ہے چودھری صاحب، آپ صبر سے کام لیں، پلیز بیٹھ جائیے۔ شاہ نواز غمزدہ سے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ محترمہ عرشیہ، کیا آپ چودھری شاہ نواز کو جانتی ہیں؟ عرشیہ کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ وہ شدید ہجوم خیز نگاہوں سے چودھری شاہ نواز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے کئی بار نگاہیں اٹھا کر حمید خان کو بھی دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر شناسائی کا کوئی تصور بیدار نہیں ہوا۔ ایک ہجومی سی کیفیت اس پر طاری رہی۔ ہاشم علی نے پھر پوچھا، کیا آپ ان لوگوں کو جانتی ہیں؟ شاہ نواز کے چہرے پر حسرت کا تاثر تھا۔ وہ غمزدہ نگاہوں سے عرشیہ کو دیکھ رہا تھا۔ عرشیہ تھوڑی دیر تک ان لوگوں کے چہرے کا جائزہ لیتی رہی۔ اس کے بعد اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتی۔ عرشیہ، میں شاہ نواز ہوں۔ تم پیار سے مجھے شاہو کہا کرتی تھی۔ ہم لوگ لکڑ مڑ والی حویلی میں رہتے تھے، اور عرشیہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی تھی جب تمہارے ساتھ کچھ حادثے پیش آئے۔ تمہارے کچھ دشمنوں نے تم پر جادو ٹونے کرائے اور تمہیں۔ اسی وقت ڈاکٹر حارث نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، براہ کرم اس سے آگے آپ خاموشی اختیار کر لیجئے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری بیٹی ذہنی بحران کا شکار ہے۔ ڈاکٹر اقبال، انہیں انجیکشن دو۔ یس سر۔ اقبال تیزی سے اندر کی جانب دوڑ گیا۔ عرشیہ پر نیم گھسی کی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ شاہ نواز پیار بھری نگاہوں سے عرشیہ کو دیکھ رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں کسی کے سامنے وہ اس قدر بے بس نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون سی حس تھی جس نے اسے عرشیہ سے اتنا متاثر کر دیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے عرشیہ کو انجیکشن دیا۔ کچھ دیر تک مکمل خاموشی اختیار کی گئی اور اس کے بعد ڈاکٹر حارث نے کہا، بیبی، یہ چودھری شاہ نواز صاحب ہیں۔ یہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ یہ تمہارے شوہر ہیں۔ انہوں نے ہی اخبار میں تمہاری تصویر شائع کرائی تھی اور بقول ان کے یہ کافی عرصے سے تمہاری تلاش میں سرگرداں ہیں۔ یہ سچ ہے کہ کچھ حادثات کی وجہ سے، جن کی مختصر تفصیل تمہارے علم میں ہے، تمہاری ذہنی قوتیں متاثر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ تمہارے بارے میں کسی اور نے کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر تم پسند کرو تو ان کے ساتھ جا سکتی ہو سکتا ہے تقدیر ہم سب کا ساتھ دے اور تمہاری یادداشت واپس آ جائے۔ انجیکشن کے زیر اثر عرشیہ کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میں جانتی ہوں انکل حارث کہ میں ایک متنازع شخصیت ہوں، ہر چند کے میرے ذہن میں آپ کے لیے اپنے باپ جیسا مقام ہے، اور آپ نے جس طرح مجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، میں بڑی خوشی سے آپ کے گھر میں زندگی کی آخری سانس تک بتا سکتی ہوں۔ مجھے کسی اور شے کی طلب نہیں ہے، لیکن میرے ذہن کے خانوں میں ان سال کی کوئی تصویر
नहीं उभरती है जो खुद को मेरा शोर कह रहे हैं। हाशिम अली, आप क्या कहते हैं इस बारे में? डॉक्टर हारिस ने हाशिम अली से कहा। हाशिम अली गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, चौधरी शाहनवाज बेशक एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत है, उनकी जमानत हर जगह से हासिल की जा सकती है, पर डॉक्टर हारिस बकौल आपके मोहतरमा अर्शिया खोई हुई याददाश्त की मरीज़ा हैं। मेरी अपनी राय है कि इन्हें चौधरी साहब के हवाले कर दिया जाए, लेकिन चौधरी साहब से भरपूर जमानत ली जाए कि वो मोहतरमा अर्शिया को मुकम्मल आज़ादी देंगे और उनके ज़हन पर तसल्लुत जमाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि एक आजमाइशी अरसे के लिए वो मोहतरमा अर्शिया को अपने साथ रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें पिछली ज़िंदगी याद आ जाए। अगर इस मुकर्ररा अरसे में वो उनकी याददाश्त वापस लाने में कामयाब नहीं हो सके तो इन्हें वापस आपके पास पहुँचा देंगे। हम चौधरी शाहनवाज के साथ उनके घर जाएंगे, वहाँ का जायजा लेंगे और उनका निकाहनामा भी हासिल करेंगे। उसकी एक कॉपी हमारे पास रहेगी। मतलब ये है कि ये लोग उनके पूरे तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देंगे। इन्हें ज़हनी या जिस्मानी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। बताइए चौधरी शाहनवाज, क्या आप इस बात पर तैयार हैं? दिलो जान से मैं अपनी लुटी हुई कायनात को वापस लाने की भरपूर कोशिश करूँगा, चौधरी शाहनवाज ने कहा। मिस अर्शिया, क्या आप इस सिलसिले में हमसे ताउन करेंगी? अर्शिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है। और उसके बाद बाकी मामलात हाशिम अली की मौजूदगी में ही तय हुए। डॉक्टर हारिस ने बड़े गमो इंदा के साथ अर्शिया को अपने घर से रुखसत किया था। वो वाकई लुटे लुटे नजर आ रहे थे। अर्शिया डॉक्टर हारिस के घर से रुखसत हो गई और चौधरी शाहनवाज उसे लेकर लक्कड़ मोड़ हवेली चल पड़ा। हाशिम अली भी सादा लिबास में उनके साथ था और उसने वादा किया था कि वापस आकर डॉक्टर हारिस को पूरी रिपोर्ट देगा। चौधरी शाहनवाज अर्शिया को लेकर लक्कड़ मोड़ हवेली ही आया था और उसके बाद उसने निकाहनामा हाशिम अली के सुपुर्द कर दिया था। उसने हाशिम अली को बताया, असल में ये दो औरतों की रकाबत का मामला था और आप जानते हैं कि बीवी दुनिया की हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन एक सौतन नहीं। एक पुरअसरार और अनोखी कहानी है ये। खैर, हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे। मैं आपको अपनी पहली बेगम से भी मिलवाऊंगा ताकि आप इस मसले में ज़्यादा मुतदर्रिद ना हों। फिर चौधरी शाहनवाज ने हाशिम अली को हर तरह से मुतमईन किया और शाहिना बेगम से भी मुलाकात कराई। हाशिम अली कुछ मजीद हदायत देने के बाद वहां से वापस पलटा था और चौधरी शाहनवाज ने हमीद खान के साथ मिलकर मंसूबा बंदियां शुरू कर दी कि किस तरह अर्शिया की याददाश्त को वापस लाया जाए और उसे उसका माजी याद दिलाने की कोशिश की जाए। राजगंदल दूसरी बार भी पूरी तरह नाकाम रहा था। उसकी कोशिशों और उसके जाप ने उसे धोखा नहीं दिया था, बस उसके भाग उसका साथ नहीं दे रहे थे। यहाँ पर पहुँचने के बाद उसे ये बात पता चल गई थी कि वो पुरस्रा वजूद यहाँ काफी अरसा रहा है और उसने पहले घर की तरह यहाँ के लोगों के दिल में भी अपना मकाम बना लिया था, लेकिन फिर यहाँ से भी गायब हो गई। राजगंदल को यह एहसास हुआ था कि कोई पुरस्रा कुव्वत उससे आगे आगे चल रही है और वो दिल ही दिल में सोचता था कि बाबा अदरीस अली एक बार मौका मिल जाए। जिस तरह मेरे मन में महान शक्ति हासिल करने का ख्याल आकाश तक पहुंचा हुआ है, इसी तरह अब दूसरा ख्याल ये भी है कि अगर मुझे महान शक्ति मिल गई तो सारी महान शक्ति बाबा अदरीस अली तेरी तबाही में लगा दूंगा। तुझे इस तरह दरबदर करूंगा कि संसार तेरी हालत पर रोएगा। अब क्या करना चाहिए? सारे जाप पूरे हो चुके थे और अब वो एक मामूली से नाक के सिवा कुछ नहीं था। नाग से इंसान बनने के लिए उसे एक अनोखा जाप करना था जो उसके ज़हन में महफूज था, लेकिन ये जाप करने के बाद महाशक्ति हासिल करने का ख्याल या किसी भी तरह की दूसरी कुव्वतें हासिल करने की ताकत उसके अंदर नहीं रहेगी और वो संसार के एक आम बासी की तरह जीवन के बकिया दिन काटने पर मजबूर होगा। तू है ऐसी जिंदगी पर, ऐसे जीवन पर जो इतनी शानदार हैसियतों के बाद गुजारना पड़ेगा। नहीं, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। अच्छा तो ये है कि किसी कोने खुदरे में छुप कर थोड़ा सा जीवन बिताऊं और अपने ज्ञान ध्यान को आवाज दूं। हवेली में रहना तो अब बेकार ही है। अगर हवेली वालों ने इस शक्ल में देख लिया तो जान के लाले पड़ जाएंगे। चुनाचे उसने एक रास्ता मुंतखब किया और हवेली से बाहर निकल गया। शहरी जिंदगी में जो खतरात पेश आ सकते थे वो उसके सामने थे। कई बार मोटरों के नीचे कुचलकर मरने से बचा। एक जगह कुछ लोगों ने उसे देख लिया और सांप सांप के नारे लगाते हुए उसके पीछे पड़ गए। वो तो शुक्र था कि एक भूसे के ढेर में घुसने का मौका मिल गया, और फिर अगर वो खाली एक सांप ही होता तो उसके जीवन की कहानी उसी भूसे के ढेर में खत्म हो जाती। उसने सोच लिया था कि उसे देखने वाले उसे भूसे के ढेर में भी नहीं छोड़ेंगे। चुनाचे वो दूसरी तरफ से निकल के एक घर की नाली में घुस गया
जो कीचड़ से भरी हुई थी। लेकिन इस तरह उसकी जिंदगी बच गई क्योंकि कुछ ही देर के बाद भूसे के ढेर से शोले उठने लगे थे। उसकी जान के ग्राहकों ने भूसे के ढेर में आग लगा दी थी। राजगंदल दहशतज़दा निगाहों से भूसे के ढेर से बुलंद होते शोलों को देख रहा था। अगर वो इसमें छुपा होता तो उसकी चिता जल गई होती। हे महासावली, जो कुछ मैंने किया तेरे नाम पर किया, सारी घटनाएं झील कर जाप किए, फिर मैं इन मुश्किलों का शिकार हो गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? आखिरकार उसने फैसला किया कि जितनी जल्दी हो सके इंसानों से दूर निकल जाए। उनके बीच में रहकर एक सांप का जीवन बचाना बहुत मुश्किल होगा। चुनाचे वो गंदी नाली से निकलकर सुनसान रास्ता इख्तियार करता आबादी से बाहर निकल गया। तहद्दे निगाह तरकारियों के खेत फैले हुए थे। बास जगह औरतें जमीन खोद कर आलू निकाल रही थीं। वो इन सब से बचता हुआ आखिरकार सुनसान मैदान में आ गया। तहद्दे नजर खुशक झाड़ियां फैली हुई थीं। एक सांप के जीवन में क्या होता है, अब उसे उसका तजुर्बा हो रहा था। लेकिन मेरे जीवन का अब क्या होगा? क्या मैं जीवन भर के लिए नाग बना रहूं या फिर अपने मन से महाशक्तिमान बनने का ख्याल निकाल दूं और फिर से मंच बनने का जाप कर लूं? लेकिन उसके बाद कोई शक्ति मेरे पास नहीं रहेगी और मैं एक आम इंसान रह जाऊंगा। मगर वो जीवन कोई जीवन नहीं होगा। जिस तरह मैं एक आम आदमी को आसानी से नुकसान पहुंचा रहा था, उसी तरह कोई भी आम आदमी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मैं जो राजगंदल होकर इंसानों पर राज करता रहा हूँ, अब एक आम आदमी की हैसियत से जीवन बिताऊंगा। और अगर उन लोगों में से किसी ने मुझे पहचान लिया जिन्हें मेरे हाथों नुकसान पहुंचे हैं, तो वो मेरा क्या हाल करेंगे? हे महासावली, हे महाकाली, तेरे राज में मुझ पर ये बीतेगी। मैं ये नहीं चाहता, मगर कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। राजगंदल दर हकीकत जिंदगी की बहुत बड़ी मुश्किलात से गुजर रहा था और न जाने किस किस को अपना दुश्मन करार देता था। उस वक्त को कोसता था जब वो आदमी उसके पास पहुंचा था जिसने उसे शाइना के पास पहुंचाया था। मैदान में नजर आने वाली झाड़ियों के एक झुंड में उसने पनाह ली और कुंडली मारकर लेट गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता जा रहा था और जमीन तपने लगी थी। झाड़ियों में फिर भी अमन था, लेकिन उस वक्त उन झाड़ियों से निकलकर बाहर जाना बड़ा मुश्किल था। तपती जमीन पर सफर का तजुर्बा अनोखा ही होता। बुरी तरह तन्हाई का शिकार था, लेकिन जहाँ उसके साथ तकदीर ने थोड़ी रियायत की, उसे झाड़ियों में एक सरसराहट सुनाई दी और उसके बाद फुनकार। उसने पलट कर देखा तो चित्तनंदी फन डाले रेंगती हुई झाड़ियों में आ रही थी। राजगंदल को अपने आप पर हंसी आने लगी। अब अगर संग साथी भी है तो नाग, और फिर ये चित्तनंदी जो कह रही है वो भी बहुत अजीब है। ताहम उस वक्त उसने खामोशी इख्तियार की। चित्तनंदी झाड़ियों के पनाह में आकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी और फिर उसकी आवाज उभरी। तू समझता था कि मुझसे छुप कर धरती पर अपने लिए कोई और जगह बना लेगा? नहीं महाशीष, ऐसा मुमकिन नहीं है। चित्तनंदी तेरी सच्ची प्रेम का है। मैंने तो न जाने कितना समय सिर्फ तेरी आरज़ू में गुजार दिया। तू नहीं जानता महाशीष नाग कि जब मेरा तेरा मिलाप हो जाएगा तो संसार में कैसी अनोखी कहानी जन्म लेगी। राज नाग और रानी नागन, हम लोग नाग भवन पर राज करेंगे। नाग भवन के सारे नाग हमारे चरणों में अपने शीश झुकाएंगे और हम सदियों नाग भवन पर हुकूमत करेंगे। ये कहा बहुत बड़े नाग का है, क्या समझा तू? राजगंदल थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर उसने नाग की जुबान में कहा, चित्तनंदी, ये कहानी तूने कहाँ से सुनी? ना महाशीष, इसे कहानी ना कह, ये तो चित्र लिखा है। चित्तनंदी की चित्र लिखा, इसमें कोई झूठ है ही नहीं। राजगंदल खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे भूख लग रही है। ले, उन झाड़ियों की जड़ों में हमारे लिए खुराक ही खुराक है। हमें इनमें से नमी भी मिल जाएगी और उसकी गांठें हमारा सबसे पसंदीदा भोजन है। तुझे मालूम ही नहीं? वैसे इनके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि बाहर जमीन तपती जा रही है। हमें सूरज के छुपने का इंतजार करना होगा। झाड़ियों की जड़ें कैसे निकाली जाती हैं? राजगंदल ने पूछा। चित्तनंदी हंस पड़ी, फिर बोली, मैं बताती हूँ तुझे। और उसके बाद वो फान से झाड़ियों के नीचे की जमीन खोदने लगी। ये एक अनोखा तजुर्बा था। नाग ये भी कर सकते हैं। और फिर बाकी झाड़ियों की जो जड़ निकाल कर उसने राजगंदल को दी। राजगंदल ने उसे खाया तो वो उसे बेहद लजीज महसूस हुई और उसे अपने बदन में एक तकवीयत का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये भी भाग में लिखा था। अभी तो आगे न जाने कैसी कैसी मुश्किलात रास्ते में खड़ी थी। चित्तनंदी बहरहाल उस वक्त उसके लिए बेहतरीन साथी साबित हो रही थी। राजगंदल सांप तो था नहीं कि उसे सांपों की सारी खसूसियात मालूम होती। वो शायद
पेट भरने के लिए भी सही चीजों का बंदोबस्त न कर पाता, लेकिन चित्तर नंदी उस पर दीवाना भर आशिक थी और इस तरह उसकी खिदमत कर रही थी जैसे उसकी खास खादमा हो। ये बूटी खाने के बाद राजगंधल को यूं लग रहा था जैसे अब तक बदन में जो थकावटें थीं वो दूर हो गई हों। वो झाड़ी में ही कुंडली मारकर लेट गया और उसकी आंखें बंद होने लगी। एक अजीब से सुरूर का एहसास हो रहा था और सोचने समझने की कुव्वतें गुम होती जा रही थीं। चित्तर नंदी भी इसी कैफियत का शिकार थी और फिर वो गहरी नींद सो गए। फिर न जाने कितनी देर सोते रहने के बाद जब नींद पूरी हुई तो आंख खुल गई। राजगंधल ने अपने बदन को सिकोड़कर फन उठाने की कोशिश की, लेकिन अभी फन थोड़ा सा उठा ही था कि सर किसी चीज से टकराया और फन नीचे हो गया। राजगंधल को हैरत हुई कि ये क्या चीज है जो सर के ऊपर आ गई है। हो सकता है उसी झाड़ी का कोई हिस्सा हो जो सर से टकराया हो। उसने पलटकर मुंह ऊपर उठाया तो कुछ नजर न आया। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उसी वक्त उसे चित्तर नंदी की पुकार सुनाई दी और फिर उसकी आवाज राजगंधल के कानों में गूंजी। हे महानाग, ये क्या हुआ? कहाँ हैं हम लोग? महाशीष, क्या तुम्हारे सर के ऊपर भी कोई चीज है? हाँ चित्तर नंदी, पता नहीं ये क्या है, राजगंधल ने कहा और उसके बाद वो मुंह ऊपर करके अपनी दो शाखी जुबान से उस चीज को चाटकर महसूस करने लगा। तभी चित्तर नंदी की आवाज उभरी। हे महाशीष, ये तो हम किसी टोकरी में बंद हैं। ओह, जरूर हमें किसी सपेरे ने पकड़ लिया है। अब पता चला कि जब हम नींद की आगोश में जा रहे थे तो हमारे कानों में एक मुद्दर आवाज गूंज रही थी जो हमारे शरीर में नशा उतार रही थी। महाशीष, वो बीन की आवाज थी। अरे तुम महसूस नहीं कर रहे? हम अब उस झाड़ी में नहीं हैं बल्कि किसी टोकरी में हैं और देखो ये टोकरी हिल रही है। इसका मतलब है कि हम किसी सपेरे की पींगी में हैं। राजगंधल के मुंह से कोई आवाज न निकल सकी। उसका दिल गम व इंधा में डूब गया। हाय, क्या जमाना था जब 10-20 इंसानों को खत्म करना उसके लिए मुश्किल काम नहीं था और आज वो कितनी बेबसी से लोगों के कब्जे में था। क्या करे क्या ना करे, दिल नहीं चाहता था कि इंसान बनने का जाप कर डाले, क्योंकि ये बात उसे बता दी गई थी कि जब वो जाप करके इंसान बन जाएगा तो उसकी हैसियत एक कमजोर तिनके जैसी होगी। कोई शक्ति उसके पास नहीं होगी और उसके बाद वो जीवन भर शक्ति हासिल भी नहीं कर सकेगा। बहरहाल अब जो कुछ हुआ था उसका कोई तोड़ नहीं था।